Hello, good morning all. Hello. Yes, sir, you're audible. Okay, fine. So right now only 11 people have joined in. So any doubt still? Last lecture we have discussed about how the PageRank algorithm works, and we have seen its basic formulation. That is, how can we calculate the PageRank score for each node in the graph? So any doubt in this? See, there are two basic steps. First, you have to create the flow equations at every node. Okay, and then solving the flow equation till the convergence will provide us the final PageRank scores. Now we saw this example, no? That we started with this initially all the nodes are assigned the score 1 by n, that is where the capital N is the total number of nodes in the graph. Okay, so I have not shared the screen. Let me share the screen. Okay, fine. So we saw this example, है ना? That at every node we initialize the PageRank score with the value 1 by n, that is the where capital N is the total number of nodes. Then first we create the flow equations. Flow equations we create, and then we plug in these values into these flow equations and keep calculating in every iteration the values till the point of time that iteration I and iteration I minus 1 has the same value for every node. Okay, or the difference between the two successive iterations is very nominal. We set some threshold, and है ना, जैसे आप मशीन लर्निंग के अंदर करते हो कि कन्वर्जेंस आप कब मानते हो कि भाई ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, कि जब कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू के उससे कम डिफरेंस आने लग जाए ट्रेनिंग में. तो सिमिलर हैपेंस ओवर हियर कि कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम डिफरेंस रह जाए दो सक्सेसिव इटरेशंस में, then we say that network has now stabilized. That is, the final PageRank scores have been achieved for every node in the graph. Okay, now this is the matrix formulation, because this algebraic expression is hard to solve. That is this system of equations is hard to solve. So we formalize this in terms of a matrix equation as R is equal to MR, where M is the importance given by the value 1 by D. Okay, so ultimately it turns out to be the algebra expression on the left side of your screen. Okay, now there arise three questions: that whether this particular algorithm converges, and whether it will converge to what we expect or what we want, and the third question is, are the results reasonable? Okay, so these three questions arises when we process any graph using this PageRank model. ठीक है, हम अल्टीमेटली क्या करना चाह रहे हैं, हमारा एम क्या है कि हमारे पास एक गिवन ग्राफिकल नेटवर्क है. ठीक है, जैसे कोई सोशल नेटवर्क है या रियल वर्ल्ड नेटवर्क है. ठीक है, नेटवर्क ऑफ एनी काइंड. ठीक है, उसको हमने ग्राफ में कन्वर्ट किया है. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द पेज रैंक स्कोर्स फॉर एवरी नोड, है ना, विच विल अल्टीमेटली टेल दैट द स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ दैट नोड इन द ग्राफ. ठीक है, कि कौन सी नोड ज्यादा पॉपुलर है. भाई पेज रैंक स्कोर उसी का ज्यादा आएगा जिसके इनफ्लोज ज्यादा होंगे, या दैट इज बीइंग रेफर्ड टू बाय अ नंबर ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क. ठीक है, तो पेज रैंक स्कोर इसी का आएगा. तो अल्टीमेटली वी आर लुकिंग फॉर अ पॉपुलर नोड इन द नेटवर्क बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चरल पोजीशन. फीचर कोरिलेशंस can also work upon, but right now we are concerned about the structural position of the node in the graph. Okay. Now there arise two problems with this kind of a modeling. ठीक है, ये पेज रैंक मॉडल जो हमने दिया या बेसिक इक्वेशन जो दी हमने पेज रैंक की, इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज सम पेजेस आर डेड एंड्स, मतलब कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिसमें आगे फ्लो नहीं होता. ठीक है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज लीफ नोड्स, मतलब आप अपने ग्राफ के उनको डेड एंड्स या लीफ नोड्स बोल सकते हो. ठीक है, हैविंग नो आउटलाइंस. ठीक है, सच पेजेस कॉज, तो ये क्या करते हैं, ये फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं वहां पे. ठीक है, बिकॉज
द अल्टीमेट आइडिया ऑफ द पेज रैंक इज कि हाउ द फ्लो गोज इनटू द नेटवर्क, ठीक है। अब अगर फ्लो ही ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, हेलो, हाँ ऋषभ बोलो। हाँ ऋषभ, ये एक बार पूछना पड़ेगा मेरे को। मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, एक्चुअली मेरी क्लास चल रही है, फिर मैं बात करता हूँ। ओके ना। ओके, सो the first problem is there are dead ends in the network, ठीक है, so they obstruct the flow. The second problem is of spider traps that eventually your flow stucks up into a loop, ठीक है। कि भाई इस जैसे कुछ इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो गया नेटवर्क में। सॉरी, ओके, सो इफ सम कुछ इस तरीके का क्रिएट हो गया, ठीक है, लेट्स से समवेयर देयर इज दिस काइंड ऑफ एक साइकिल सी बन गई है, ठीक है। नाउ अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम एज पर द एल्गोरिथम कि हम इस लूप से बाहर नहीं आ पाएंगे, ठीक है, एंड योर पेज रैंक एल्गोरिथम विल स्टक ओवर इन दिस सेंस, ठीक है, विल स्टक ओवर हियर, ठीक है। इसको अगर हम समझें दोनों प्रॉब्लम्स को, तो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑफ स्पाइडर ट्रैप, दैट इज द लूप हैज बीन जनरेटेड। सो अगर हम इस पे प्रॉब्लम को रन करें तो इनिशियली लेट्स से ये 1/2 से, तो अगर आप इनकी फ्लो इक्वेशंस लिख सको अगर, है ना, तो इनिशियली क्या होगा, that RA is equal to 0, that is no incoming link onto that, and RB will be is equal to RA plus RB, RA plus RB. Are you getting this all? ये समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अरे भाई, यहाँ हमने जो फ्लो इक्वेशंस बनाई थी, तो आर वाई पे इक्वेशन कैसे बनी थी, लाइक इन लिंक फ्रॉम ए एंड फ्रॉम वाई एज वेल, तो क्योंकि दो आउटलिंक्स थे इसके, तो दी importance over each link was divided, ठीक है, that is ry/2 and ry/2 of this link and ry/2 of this link, ठीक है, and ra was given by the, and again since ra has two outlinks, so ra/2 was given importance to this link and ra/2 was given importance to this link. Now here what do we have? So if I, तो this इस पे तो कोई भी मेरा वो नहीं है, and RB is given as RA plus RB. Now इनिशियली अगर हम उसी पेज रैंक एल्गोरिथम को भी अगर कंसीडर करें, तो अगर हम इसको RA को पेज रैंक स्कोर 1/2 दें एंड RB को पेज रैंक स्कोर 1/2 दें, तो यहाँ से एल्गोरिथम स्टार्ट होगी, ठीक है। सो RA इज गिवन, तो दिस विल रिमेन 0, ठीक है, एंड दिस विल बी गिवन 1, ठीक है। तो ये शायद उल्टा लिख गया है यहाँ पे, आई थिंक दिस शुड बी 0 एंड दिस शुड बी 1, व्हाटएवर, ठीक है, वो नेक्स्ट इटरेशन में आ जाएगा वैसे, ठीक है। तो इसमें अगर आप इंफॉर्मेशन प्लग इन करोगे तो ये 0 रहेगा एंड दिस विल हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इटरेशन में अगेन इट विल बी 0, ठीक है, एंड
आर ए इज 0 + 1, ठीक है। तो ये आप देखोगे ना, तो ये पेज रैंक स्कोर जो है ये स्टैग्नेंट हो गया, ये स्टैग्नेंट हो गया 0 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ठीक है, हम इसको ये भी मान सकते हैं कि कन्वर्ज हो गया है, ठीक है, बट अल्टीमेटली योर फ्लो हैज बीन स्टॉप्ड, ठीक है। दीज वैल्यूज आर नॉट चेंजिंग, ठीक है, दीज वैल्यूज आर नो मोर चेंजिंग, इन एवरी इटरेशन इट इज बीइंग लाइक दिस, ठीक है। So this is the problem of your spider trap. It happens because this loop has been created and the flow is stuck now. Whatever flow is coming from A is stuck at B now. Okay, it's acting like a sink to this network now. So this problem is called spider trap. Okay, any problem, any issues in that? Can you move forward? समझ आ पा रहा है या बस ज्वाइन करके बैठे हुए हो? ये सब क्वेश्चंस आएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर आप बाद में कहोगे कि सर ये तो पढ़ा नहीं था हमने क्लास में। दिस इज बीइंग डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल, ठीक है। अब इससे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं हो सकती कि उसमें आपको मैंने क्वेश्चंस भी रख के दिखा दिए हैं, ठीक है। हियर व्हाट डू वी हैव, आर ए इज इक्वल टू 0 एंड आर बी इज इक्वल टू आर ए। Initially, let's say RA and RB are being initialized by 1 by 2 1 by 2, okay. So the initial iteration, it should be, actually it should start from 1 by 2 only as per the PageRank model. So 1 by 2 1 by 2, then what do we have, RA is equal to 0, so 0 will come over here and RB is equal to 1 by 2, ठीक है। and हाँ ठीक है, उसके बाद 0 and 1, okay, 0 and then it will start coming up as 0 only, okay. 0 and why should it is 1 over here? I think it should be half, and then do we have 0 and then 0? It should be start from 0 over here only, okay. So for the next 3 iterations it will remain 0 0 0, okay. So ultimately again the same problem happens, that the PageRank scores are not moving forward. The PageRank score are stuck up here only. So this particular PageRank basic model does not work well for these kind of situations in the graph. Okay, अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो आपका PageRank मॉडल वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो अब क्या है, सोल्यूशन इज दैट कि अगर हम ऐसे किसी पार्ट में चले जाते हैं नेटवर्क के, तो वी हैव टू मेक अ जंप फ्रॉम दैट, we have to make a jump from that at some random page, ठीक है। So the Google solution for spider traps is, at each time step the random surfer has two options, है ना। The random surfer has two options, either we go from here with probability beta follow a link at random, ठीक है, with probability beta follow a link at random, ठीक है, and with probability 1 minus beta jump to a random page, ठीक है। So let's say we are over here, yeah, let's say these are the choices for particular node to go, so it can choose with the probability beta this, with the probability beta this, and with the probability beta this, ठीक। Now apart from this, what do we have, we can directly jump to some random page. Instead of following the links, we can jump to some random page. So if this kind of a situation arise in my network at some point of time, so by analyzing the page scores we can या page rank जो भी algorithm आपका score generate कर रहा है उस particular situation, so we can come to know that the algorithm has stuck up into a spider trap. So we can directly jump to some random page in the network, some random page into the network. Otherwise, so ideally this beta value is kept 0.8 or 2.9. This 1 minus beta is the probability, it's generally kept very low because we want our, क्योंकि random page पे थोड़ी ना जब हम करना चाहते हैं, we want to move by following the links only, but only in the case जहाँ पर हम stuck up हो जाएंगे, जहाँ पे हम spider trap में फंस जाएंगे, we can randomly jump to some page in the network, ठीक है, randomly jump to some
पेज इन द नेटवर्क। ऐसा वेब पेजेस में होता भी है कि आप फॉरवर्ड जाते जाते या क्लिक करते करते कोई पेज पे अगर आप पहुंच गए जहाँ पे लेट्स से आपका वो स्टक हो गया, जो भी आपका ट्रांजैक्शन था या जो भी था मतलब उस पर्टिकुलर पेज पे, तो वो फिर रैंडमली जंप कर जाता है किसी पेज दूसरे पेज पे, ठीक है, रैंडमली जंप कर जाता है किसी दूसरे पेज पे। दिस हैपेंस बट इट्स की प्रोबेबिलिटी इट्स केप्ट वेरी लो, ठीक है, बिकॉज वी वांट टू मूव इन द नेटवर्क यूजिंग द लिंकेजेस ओनली, नहीं तो लिंकेजेस का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं टेलीपोर्ट करना। सर्फर विल टेलीपोर्ट आउट ऑफ स्पाइडर ट्रैप विद इन अ फ्यू टाइम स्टेप्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेलीपोर्टिंग आउट ऑफ द स्पाइडर ट्रैप, ठीक है, दिस टर्मिनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, टेलीपोर्टिंग आउट ऑफ द स्पाइडर ट्रैप। So follow random teleport links with probability 1 from dead ends। तो जैसे इस सिनेरियो में है m is the dead end, ठीक है, m is the dead end, so it can follow any तो यहाँ पे क्या है देखो, डेड एंड कैसे पता चला कि इसकी मैट्रिक्स में m के सारी वैल्यूज जीरो हैं, इट मींस इट्स नॉट, इसकी इंपॉर्टेंस नील है या जीरो है, ठीक है, तो जीरो होने का मतलब ये डेड एंड है, ये फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कोई रैंडम लिंक पास करूंगा, कोई भी 2 या 3, ठीक है, या इस पेज से मैं किसी दूसरे पेज पे जंप होने की प्रोबेबिलिटी आई विल डिवाइड इट इनटू 1/3 1/3 1/3, सो एनी वन ऑफ द लिंक्स कैन बी, मतलब एक रैंडम लिंक जनरेट करूंगा किसी दूसरे पार्ट में ग्राफ के, and will provide a linkaging to this particular page or this particular page or this particular page, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रही, 1/3 1/3, so the matrix has been updated as 1/3, ठीक है, fine, we can go forward। So this brings us to the modification in my PageRank model as this, ठीक है, this basic PageRank equation was first, and this is only considered as the Google PageRank model given by this Larry Page and Brin, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ तक का तो देखा ही था, समेशन i2 j ri ओवर डी है, ठीक है। अब लिंक को फॉलो करने की प्रोबेबिलिटी वाज गिवन बाय बीटा, एंड टू टेलीपोर्ट आउट ऑफ these spider traps the probability is 1 minus beta and 1 divided by the total number of nodes, ठीक है। तो यहाँ तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि the probability can be given as, भाई ये तो तब की बात है ना जब मेरे पास नेटवर्क स्ट्रक्चर और भी है, अगर सपोज करो मेरा नेटवर्क स्ट्रक्चर इतना ही है, तो दिस कैन बी डिफाइंड एज जंपिंग, दिस जंपिंग कैन बी डिफाइंड एज एक लिंक यहाँ चला जाए या एक लिंक यहाँ चला जाए या एक लिंक यहाँ चला जाए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू मूव आउट ऑफ द पेज, and accordingly the PageRank algorithm gets modified। दिस इज द ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ को देख के आप क्या कुछ बता सकते हो मुझे कि ये बी पेज रैंक, ये एक्चुअली इनके पेज रैंक स्कोर है, ठीक है। दिस इज सम सैंपल फ्रॉम सम एक्सपेरिमेंट, दीज आर द नोड्स, can be considered as a snapshot of this some kind of a network, and the sizes of this circle denotes the importance of the node in the network, and within this circle their page rank scores are being mentioned, okay। So since this particular node B has the most number of in links in comparison to any of the node in the network, the page rank score or the popularity of this particular node is the most, okay। Can you tell me that why this C is having the popularity almost as close to as B? Any guesses, any answer for this, even though it is not having the in links? It has only one in link from node B,
तो क्या बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि नोड सी जो है वो पॉपुलर ज़्यादा है, या ऑलमोस्ट उतनी ही पॉपुलर है जितनी नोड बी है, इवन दो नोड बी के पास जो इनलिंक्स हैं उतने इनलिंक्स इसके पास नहीं है। इनफैक्ट इस पे एक ही इनलिंक है, एक ही इनवर्ड लिंक है। कुछ आइडिया, कुछ केसेस? आरुषि, आरुषि सक्सेना। Yes, sir. आरुषि, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ ऋषि, बता सकते हो बेटा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी जो तुम्हें चीज समझ में आ रही हो कैसा हो रहा हो। क्वेश्चन पता है या नहीं पता है, सुना था नहीं सुना था? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, है ना। ये एक नोड है बी नेटवर्क में जिसका पेज रैंक स्कोर सबसे ज्यादा है। उसका रीजन क्या है कि जो इसको नोड्स रेफर कर रही है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एनी अदर नोड इन द नेटवर्क। ये समझ में आ रहा है Yes, sir. आरुषि? हाँ हाँ, Yes, yes. ठीक है। तो उसकी वजह से, क्योंकि हम पेज रैंक में क्या बोल रहे हैं कि इनलिंक्स आर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, आउटलिंक से ज्यादा मेरे लिए इनलिंक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बट what is happening with this C? Why this C is having the page rank score या popularity as close to as B, even though it is not having so many inlinks as B is having? उसका कोई reason कुछ? Sir, because C को B से in link मिल रहा है. Exactly. तो उससे क्या हो रहा है? Now think in terms of your Facebook pages. ये पेज है लेट्स से किसी पॉपुलर एक्ट्रेस का, ठीक है, आई एम नॉट नेमिंग दैट एक्ट्रेस। लेट्स से दिस इज द पेज ऑफ सम पॉपुलर एक्ट्रेस, ठीक है। and since it is a page of some popular actress, there are many followers, ठीक है। this is the page, this is your page, let's say, ठीक है। now you are not having many followers, still your popularity index is high. The reason is, the Sir, reason is this page. because हाँ, B के in link C पर भी जाएंगे. So, exactly. This is called induced centrality effect, ठीक है। इसको हम induced centrality effect बोलते हैं। इसका सीधा सीधा yes. अगर हम मतलब समझे ना, तो ये है कि some popular node, some very popular node is referring to a node, ठीक है। अब यहाँ नोड हम वेब पेज के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो ये जो पॉपुलर वेब पेज है ये इस पर्टिकुलर वेब पेज को रेफर कर रहा है। दैट्स व्हाई दी सेंट्रलिटी, क्योंकि इसका, अब इसको अगर हम इक्वेशन के टर्म्स में समझे तो क्या है, इस पे फ्लो बहुत ज्यादा है। वो सारा फ्लो कहाँ डायरेक्ट हो रहा है? इधर, ठीक है। इसका एक ही आउटलिंक है, तो वो सारा का सारा फ्लो इधर डायरेक्ट हो रहा है। अगर इससे ज्यादा आउटलिंक्स बनने शुरू हो गए एंड लेट्स से इधर इधर मैं एक आउटलिंक निकाल दिया, तो ये क्या होगा, ये फ्लो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा इसको आधा इसको। एंड सिंस दिस नोड इज ऑल्सो हैविंग सम फ्लो कमिंग टू इट, सम फॉलोइंग कमिंग टू इट, तो क्या होगा अल्टीमेटली, इस पर्टिकुलर पेज की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग एज पर द पेज रैंक मॉडल इन द सोशल नेटवर्क, ठीक है। तो ठीक है। नाउ देर आर सर्टेन वर्जन ऑफ दिस पेज रैंक, ठीक है। तो द फर्स्ट वर्जन इज रैंडम वॉक विद रीस्टार्ट्स एंड पर्सनलाइज्ड पेज रैंक, ठीक है। अब ये सारे मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो गए, वो था बेसिक पेज रैंक मॉडल। अब इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन क्या है कि जो पेजेस रेफर हो रहे हैं, या जो मैं टेलीपोर्टिंग की आपसे बात कर रहा था, वो टेलीपोर्टिंग क्या हो, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। चलो ये क्या बोल रहा है एग्जांपल, ये एक ग्राफ सर्च का एग्जांपल है। तो लेफ्ट साइड में ये एक बाईपार्टाइट ग्राफ के फॉर्म में ही नेटवर्क शो किया है अपन ने, मतलब उस पेपर में।
and the left side are the names of the conferences, and the right side are the authors to those conferences. ठीक है, authors to those conferences. तो अपन ने उस दिन भी एक एग्जाम्पल किया था कि अगर अपन प्रोजेक्शन लेते हैं, है ना, तो द वे वी आर टेकिंग द प्रोजेक्शन विल रिवील द इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे अब हम क्या क्या इंफॉर्मेशन इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि जैसे फिलिप है, फिलिप हैज पार्टिसिपेटेड इन KDD, ICDM, SDM, AAAI, इन कॉन्फ्रेंसेस में उसने पार्टिसिपेट किया है. ठीक है. सिमिलरली नियाग जोंग जो है उसने कुछ कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है. सो इफ वी टेक द प्रोजेक्शन ऑन द कॉन्फ्रेंस साइड, so we will come to know that which all authors are common to the conferences. मतलब किसी जैसे ICDM पे कौन कौन से ऑथर्स ने पार्टिसिपेट किया था. ठीक है. सो दैट विल ब्रिंग अप टू द कंक्लूजन कि these particular authors are, because these are specific conferences, area specific conferences. ठीक है. जैसे ICDM is International Conference on Data Science and Machine Learning. ठीक है. So these are very, KDD is Knowledge Data Discovery Conference. These are very ranked and popular conferences. तो इन पे किसने पार्टिसिपेट किया था. और सिमिलरली अगर हम ऑथर साइड अगर प्रोजेक्शन लेंगे तो विच ऑल ऑथर्स पार्टिसिपेटेड टुगेदर इन अ कॉन्फ्रेंस. ठीक है. अल्टीमेटली हमें ये पता चल जाएगा कि ऑथर्स कौन कौन से सेम एरिया में काम कर रहे हैं. ठीक है. व्हाट इज द मोस्ट रिलेटेड कॉन्फ्रेंस टू. हाँ, taking projection on the author side will also let us know that which all two conferences or which pair of conferences are most closely correlated. ठीक है. तो doing it in different sense can help us in revealing the information. Now, what does random walk with restarts say? That we can restart this process of by random walk. Actually क्या है, BFS है. ठीक है. सो हम पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करके ग्राफ के वी कैन एंड अप एट सम नोड एंड देन वी कैन अगेन हैव अ रीस्टार्ट. ठीक है. सो हाउ ऑल दिस इज हेल्पिंग टू डेवलप अ पर्सनलाइज्ड पेज रैंक. तो जो मैंने टेलीपोर्टिंग की आपको बात करी थी, वहां पे हमने एक स्टेटमेंट यूज करा था, रैंडमली जंपिंग टू अ वेब पेज. ठीक है. Now, randomly jumping to a web page can make you totally out of the context. जैसे आप कोई प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे थे. ठीक है. एंड लेट्स से उसमें आगे सर्चिंग करते करते यू कम टू द डेड एंड और द स्पाइडर ट्रैप. ठीक है. कि आप उसके बाद आपकी सर्चेस एंड हो जा रही हैं कि वो बार बार घूम घूम के वही प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. ठीक है. तो what does PageRank do? After a certain point of time, it will make you jump out of some random web page. Now, let's say आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे थे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एंड नाउ यू आर जंप टू द गारमेंट सेक्शन. ठीक है. तो दैट डजंट मेक एनी सेंस क्योंकि आप तो जो देखना चाह रहे थे इट विल नॉट मेक यू बेनिफिट, इट विल नॉट प्रोवाइड यू दैट बेनिफिट. ठीक है. तो टॉपिक रेलेवेंट जंपिंग इज इंपॉर्टेंट, या टेलीपोर्टिंग शुड बी टॉपिक स्पेसिफिक. ठीक है. सो हमने जो पेज रैंक में वहां दिया था मॉडिफिकेशन की 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय, या 1 माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल N या स्मॉल n, जहां पे n द टोटल नंबर ऑफ पेजेस. ठीक है. अब वो टोटल नंबर ऑफ पेजेस ना रह के वहां हम पुश करेंगे एक सेट पुश करेंगे जहां पे मैं जंप करवाना चाहता हूं मेरे, है ना भाई. नेटवर्क के अंदर देयर कैन बी topics, specific searches in various regions of the network. Maybe the two networks are connected or not. ठीक है भाई. ऐसा हो सकता है ना कि एक ग्राफिकल नेटवर्क में कुछ पेजेस एक एरिया में है, कुछ पेजेस दूसरे एरिया में है नेटवर्क के, एंड दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड. तो मैं कंटेक्स्ट पे सर्च करना चाहता हूं, तो मेरा जो जंप है वो कुछ ऐसे कंटेक्स्ट पे ही हो जिसके बारे में मैं सर्च करना चाह रहा हूं. सो दिस काइंड ऑफ अ पेज रैंक एल्गोरिथम इज रेफर्ड टू एज पर्सनलाइज्ड पेज रैंक. ठीक है. पर्सनलाइज्ड पेज रैंक. इसमें बस कुछ चेंज नहीं है. हम जो वहां 1 by n कर रहे थे, जहां टोटल नंबर ऑफ नोड्स, मतलब पॉसिबिलिटीज मेरी टोटल नंबर ऑफ नोड्स में से कोई एक थी, अब वो पॉसिबिलिटी रिड्यूस करके मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया है कि मेरा जो जंप होगा वो इनमें से किसी पेजेस पे होगा. ठीक है.
and this is called topic specific set of relevant pages. तो जो अभी अपन ने एग्जाम्पल देखा था, तो यहाँ पे लेट्स से जो आपका नेटवर्क बन रहा है एज पर दी पेज रैंक एल्गोरिदम वी हैव, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेस की, तो बेसिक पेज रैंक के अकॉर्डिंग वी कैन जंप टू एनी ऑफ द कॉन्फ्रेंस पेज. ठीक है, वी कैन जंप टू एनी ऑफ द कॉन्फ्रेंस पेज, बट बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन की वो ऑथर्स ने या कौन सी दो कॉन्फ्रेंसेस को रिलेटेड है, ठीक है, कौन सी दो कॉन्फ्रेंसेस को रिलेटेड है, आई कैन डिफाइन अ सेट. लेट्स से ICDM में मैं सर्च कर रहा था, आई डिड नॉट गॉट एनी द काइंड ऑफ रिजल्ट आई वाज लुकिंग फॉर. तो अब मैं जंप करूं लेट्स से SDM पे विच इज मोर रिलेटेड टू ICDM, और KDD पे विच इज मोर रिलेटेड टू ICDM इंस्टेड ऑफ NIPS. ठीक है, क्योंकि कंटेक्स्ट ही चेंज हो गया. ठीक है, ये कोई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की कॉन्फ्रेंस हो सकती है, बट आई वाज इंटरेस्टेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ ICDM ओनली, दैट इज डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग. सो KDD इज मोर रिलेटेड टू दैट. तो जो सेट होगा उसमें मैं क्या दे दूंगा, KDD. सो वंस वी आर स्टक over the ICDM page, we will jump to the KDD page. This is called personalized page rank algorithm. ठीक है, so this is and this is what we try to do. तो इस तरीके से डिफाइन करने से क्या होगा कि we automatically rank the nodes by importance. ठीक है, and जो वो अभी induced centrality effect मैंने डिस्कस किया था, that will also come into play. That will also come into play, because if this is the particular page which we were looking for, so the most closely related page will be aligned to it. Okay. Okay, this is a short example that they have worked out. So accordingly, you can see this by calculating by yourself, that the scenario is this, and we selected S equal to 4 as the teleporting set. ठीक है, so ओके. हाँ, इसमें एक चीज ये और है कि जी जो ज्यादा रेड नोड्स हैं, दे आर मोर कोरिलेटेड. ठीक है, सो इनके कॉमन, इन तीनों कॉन्फ्रेंसेस की कॉमन कॉन्फ्रेंस कौन सी है, 4 नंबर का. तो टेलीपोर्टिंग सेट वी हैव डिफाइंड एज 4, क्योंकि इस नेटवर्क में अगर कुछ स्टकअप होता है, तो इफ आई कैन जंप टू दिस, तो दिस इज मोर कोरिलेटेड कंटेक्स्ट टू दीज 3. दिस इज मोर कोरिलेटेड कंटेक्स्ट टू दीज 3 कॉन्फ्रेंसेस. ठीक है, ये टाइप 1 की कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये टाइप 2 की कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये टाइप 3 कॉन्फ्रेंस है, ये टाइप 4 की कॉन्फ्रेंसेस, ये सब है. ठीक है, तो अगर मैं इस नेटवर्क की बात करूं इन कॉन्फ्रेंसेस के रिगार्डिंग, तो इनसे सबसे ज्यादा कोरिलेटेड कॉन्फ्रेंस ये वाली है. ठीक है, okay. And so we end up over here only. I think we are already up the time. So sim rank is all just remaining. So sim rank. I think from the next class अपन ऐसा कर सकते हैं कि the people can join, क्योंकि sim rank I will explain. मैं मैम को भी बोल दूंगा एक बार वो. तो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई थिंक वी कैन, या लेट्स से वेडनेसडे की क्लास से, वेडनेसडे की क्लास से आई थिंक द पीपल ऑफ सेक्शन बी कैन जॉइन टू द शालिनी मैम्स क्लास. ठीक है, फ्रॉम वेडनेसडे, कल की क्लास रहने दो, मैं एटलीस्ट मैं भी फिर उनको आज इन्फॉर्म कर दूंगा कि फ्रॉम वेडनेसडे शी विल बी टेकिंग, मतलब वो ले लें क्लासेस. तो सेक्शन बी स्टूडेंट्स हैं, वो वेडनेसडे से शालिनी मैम की क्लास में ज्वाइन कर जाएं, और ट्यूसडे को दे कैन लीव माय टीम. ठीक है, एंड फ्रॉम वेडनेसडे फॉर द रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर शालिनी मैम विल बी टेकिंग द क्लासेस फॉर दिस सब्जेक्ट फॉर सेक्शन बी स्टूडेंट्स ओनली. सेक्शन ए वाले मेरे में ही रहेंगे.
ठीक है. आई होप यू आर क्लियर विद सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, नॉट योर क्लास सेक्शंस, योर डीई सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. ठीक है, क्लास सेक्शन से मतलब नहीं है यहाँ पे. ठीक है, ऐसा वो नहीं कि वो सेक्शन बी मेरा तो उसमें IT 7B है तो मैंने छोड़ दिया. DE के जो सेक्शंस हैं, मैंने मेल भी करी है शायद लिस्ट आप लोगों को, अभी मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा. तो वैसे तो इट्स क्वाइट क्लियर कि मैम ने जिनको उधर ऐड कर लिया है वो सारे उधर क्लासेस अटेंड करेंगे, और जिनको नहीं ऐड किया है कहीं पे भी वो इसी में रहेंगे. तो जो वहाँ ऐड हो चुके हैं वो टीम्स लीव करना स्टार्ट कर देना ट्यूसडे से, मतलब कल से, कल की क्लास के बाद आप टीम लीव करना स्टार्ट कर देना. ठीक है, एंड वो Also, sir, कंफ्यूजन ना रहे. हाँ, what about the assignment? हाँ, आई एम कमिंग टू दैट. नाउ रिगार्डिंग असाइनमेंट, द डेडलाइन हैज बीन एक्सटेंडेड टू नेक्स्ट संडे. ठीक है, अपकमिंग संडे, दिस अपकमिंग संडे. And the people who will be attending their classes in Shalini ma'am's teams will submit their assignment there only. ठीक है, and those who are in this team, they can submit the assignment, they have to submit the assignment in this team. ठीक है, so that the data segregates properly, otherwise वो मुझे बाद में segregate करना पड़ेगा. That's a very tough task. तो हम संडे, मैं संडे तक वो असाइनमेंट की डेट आपकी एक्सटेंड कर दी है मैंने. यू कैन टेक द टाइम टिल संडे फॉर द फर्स्ट असाइनमेंट. एंड आपका जो असाइनमेंट है वो अकॉर्डिंगली जिस टीम्स में भी आप एडेड हो वो वहाँ पे भी मैम क्रिएट कर देंगे. तो अकॉर्डिंगली जिस टीम में आप एडेड हो उसके अंदर आप सबमिट कर देना. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग, क्विज. फर्स्ट क्विज अगेन अब आप डिसाइड करके मेरे को उस पर बता देना, इधर सैटरडे और ऑन संडे, क्योंकि हम वीकेंड्स पे रखेंगे. दिस वाज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम योर SPCs ओनली. तो हम सैटरडे या संडे को रख सकते हैं. तो डिसाइड करके मुझे कल तक डेट बता देना आप लोग कंसेंसस से कि किस दिन रखना है. अदरवाइज आई विल कीप इट ऑन सैटरडे इन द इवनिंग टाइम. ठीक है, क्योंकि विद इन दिस कॉलेज आवर्स माइट बी सम प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन. तो हम इवनिंग टाइम में 10 से 15 मिनट का क्विज होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्विज होगा टिल दिस पेज रैंक. ठीक है, हमने जो भी डिस्कस किया पेज रैंक तक, जो भी हमने डिस्कस किया वहां तक होगा क्विज. ठीक है, आई विल गिव एन ऑफिशियल मेल टू ऑल ऑफ यू regarding this quiz also, and from after tomorrow's class you can leave, the section B students can leave this particular team. ठीक है, is it okay? Fine. Okay, thank you so much. So we end up our class, this class today only. अब अपना बस सिम रैंक बच रहा है इसके अंदर, फिर पेज रैंक भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, फाइन, थैंक यू सो मच ऑल.